Hello friends, myself Kashish. So today we will discuss speed and velocity. Let's start. What is a speed? Speed. It is a distance traveled by the body in unit time. Speed क्या होती है? कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्पीड. Speed is equal to distance upon time. It is denoted by v. V is equal to s upon t, where s is equal to distance and t is equal to time. कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है, दैट वी कॉल स्पीड. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी ट्रेवलिंग विद 30 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी. नोट कीजिए, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. what is a scalar quantity? The quantity that has only magnitude, or we can say that has only value. स्पीड में हमें ये नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, बट वी ओनली नो कि वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल कर रही है. एंड स्केलर क्वांटिटी इज क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन. ये दो टाइप्स की है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करे, कितना छोटा टाइम हो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसके रिवर्स, जो वह अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम में, और वी कैन से इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. कितना छोटा टाइम हो जब वो वेरिएबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लाइक 30 किलोमीटर इन 1 आवर, अगले आवर में वो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, उसके अगले आवर में वो 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है. सो वी डोंट नो. इट इज फॉर लेट टेक एन एग्जाम्पल. सपोज आज हमने 2 घंटे पढ़ाई की, 2 घंटे पढ़ाई की. कल हमने 1 आवर, वही सेम टॉपिक हमने 1 आवर में किया, और परसों हमने ज़्यादा टॉपिक 30 मिनट्स में किया. So it is varying. It is non-uniform. So that is called non-uniform speed. Same as speed. So non-uniform speed is a speed when we cover unequal distance in equal time, or equal distance in unequal time. That is called non-uniform speed. Now come here with velocity. Speed क्या होती है? Distance traveled in a unit time. And what is velocity? Distance traveled by a body in a unit time in a given direction. The main word is in a given direction. स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है. दैट्स वाई स्पीड विच हैज़ डायरेक्शन वी कॉल इट वेलोसिटी. सिंपल. इट इज़ अ स्पीड ऑफ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. what is a velocity? It is a speed of a body in a particular distance. So what is the formula of velocity? It is displacement upon time. As in the previous video we have discussed about displacement. Displacement is the distance in a particular direction. Distance covered by a body in a particular direction, that is called displacement. Velocity क्या है? Speed जिसके पास डायरेक्शन हो. So what is the formula? That is displacement upon time. It is denoted by v. ऊपर इसके एरो लगती है. जो ये एरो है ये डिनोट इसलिए की जाती है कि जो स्पीड है जिसके पास कोई डायरेक्शन हो, ये वेलोसिटी का सिंबल है. सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Velocity is a vector quantity. And what is a quantity? Vector quantity that has magnitude plus direction. Scalar quantity. Speed is a scalar quantity because it has only magnitude but no direction. But velocity has a magnitude as well as direction. Now we talk about uniform velocity. When a body is moving along a straight line covering equal distance in equal interval of time, howsoever small interval may be, is said to be uniform. We can in the place of distance we can write here displacement, distance with direction, because here it is uniform velocity. जब कोई body equal displacement equal time में
कवर कर रही है, सो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में कवर कर रही है। Uniform velocity and non-uniform velocity and uniform speed are same, but difference is this: velocity has a direction and speed does not have a direction. How we can change velocity? Velocity कैसे change होती है? By changing speed of a body. अगर हम velocity का magnitude या velocity की value change कर दें, that is speed. अगर speed को हम direction देते हैं तभी वो velocity बनती है। अगर हम velocity का value change कर दें by changing the speed of body, अगर हमने value change कर दी, that is speed is changed, so we can change velocity by changing velocity speed of body. Second is by changing direction. अगर कोई body move कर रही है इस direction में और हम उसको उल्टा कर दें और move करवा दें इस direction में, suppose ये move कर रही है इस direction में A to B 30 किलोमीटर पर आवर और हम अपनी गाड़ी घुमा के B से A चलें 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ नहीं, 30 है, ये भी 30 है, इसमें स्पीड तो सेम है बट वेलोसिटी इज़ डिफरेंट बिकॉज डायरेक्शन इज़ चेंज्ड। अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके रिवर्स इसको नेगेटिव लेंगे, सो वी विल से दैट वेलोसिटी इज़ चेंज्ड। बट अबाउट स्पीड, स्पीड ओनली सी this magnitude, so speed is not changed but velocity is changed by changing direction. Or we can change velocity by changing both speed and direction. अगर हम वैल्यू चेंज कर दें तब भी velocity चेंज होगी, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तब भी velocity चेंज होगी। Now we talk about average velocity. जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस, मतलब 30 किलोमीटर एक आवर में, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर सेकेंड आवर में, 60 किलोमीटर थर्ड आवर में, ऐसे चेंज अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ऐसे कवर कर रही है, तो हम उसकी स्पीड वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकालें? सो इन दैट केस वी टेक एवरेज वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. In the case of velocity, we will put here displacement, and in case of average speed, we will take here distance. Average velocity is total displacement travel upon total time taken. कितना वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अपॉन टोटल टाइम में, that we will find average velocity. For uniform velocity, when velocity of body is changing at uniform rate over a period of time, then average velocity of a body for this period is arithmetic mean of initial. जब velocity यूनिफॉर्म रेट पे चेंज कर रही है तब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल को v/2 इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. Average velocity in the case of uniform velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2, that is u plus v upon 2. Here we will talk about some numericals. So first numerical देखते हैं हम. A car travels 30 km at a uniform speed of 40 km per hour and the next 30 km at uniform speed of 20 km per hour. Find its average speed. अब ध्यान से देखिए, a car travels 30 km. हाँ जी फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. फाइंड एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? बट एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो पहले हमें डिस्टेंस तो पता है, पहले उसने 30 किलोमीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर कवर किया. हमने एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. हमें टाइम नहीं दिया हुआ, सो हम पहले टाइम निकालेंगे. तो केस 1 में स्पीड कितनी है हमारी? दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर. एंड व्हाट इज़ टाइम? वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितने 30 अपॉन 40, दैट इज़ 3/4 आवर्स. एंड इन केस 2 स्पीड कितनी है हमारी? 20 किलोमीटर पर आवर
और डिस्टेंस कितना है हमारा 30 किलोमीटर। व्हाट इज़ द टाइम, दैट इज़ व्हाट इज़ द टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। So what is the distance? 30 upon 20, that is 3/2. T1, T2. Total time, that is T1 plus T2. 3/4 plus 3/2. That is, we take the LCM. 3 plus 6. 9/4 hours. What is the total distance? क्वेश्चन में गिवन है कि पहले उसने 30 किलोमीटर कवर किया विद 40 किलोमीटर पर आवर और फिर उसने दोबारा 30 किलोमीटर कवर किया विद 20 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 30 + 30, दैट इज़ 60 किलोमीटर। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा 60 है, टाइम 9/4, सो 240/9 kilometer per hour is the average speed. Now come with second numerical. On a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must train travel the next 90 kilometers so as the average 60 kilometer per hour for the entire trip? The average speed. इक्वेशन में क्या कह रहा है कि एक ये ट्रैक है AB, इसका टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। पहले ट्रेन ने 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर, इसको हम सी लेते हैं AC, 30 किलोमीटर उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ फास्ट मस्ट ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। अब ये जो 90 किलोमीटर बच गया वो किस टाइम से ट्रैवल करेगी ट्रेन कि जो उसकी एंटायर एवरेज स्पीड है वो 60 आ जाए। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि S1 S2 अपॉन T1 + T2। S1 मतलब कि पहले उसने 30 किलोमीटर कवर किया, वो S1 हो गया। उसके बाद उसने 90 किलोमीटर कवर किया, दैट इज़ S2। और पहले 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगा? T1, एंड 90 किलोमीटर के लिए T2। हमें फर्स्ट केस में स्पीड पता है, डिस्टेंस भी पता है, हम T1 निकाल लेते हैं। S1 S2 हमें पता है, वो क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज स्पीड भी पता है, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? T2, दिस वी हैव टू फाइंड। तो केस 1 में A to C डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। V कितना है? दैट इज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। एंड व्हाट इज़ द टाइम? S/V, दैट इज़ 1 आवर। T1 की हमें वैल्यू आ गई। तो एवरेज स्पीड जो है वो गिवन है हमें यहाँ पे 60। 60 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? 30 + 30, और टाइम, टोटल टाइम T1 + T2। T1 हमें निकाल लिया 1 आवर, प्लस T2 हमें फाइंड करना है कि हमें दूसरे C से लेके B में जितना 90 किलोमीटर ट्रैवल किया है स्पीड से वो कितने टाइम में किए, ताकि जो एवरेज स्पीड है वो 60 के इक्वल हो। सो लेट्स फाइंड। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 × 1 + T2, 30 + 30 60, दिस कैंसल। 1 + T2 इज इक्वल टू 1 + T। हेयर हमने कोई गलती कर दी, देखिए यहाँ पे देखिए S1 30 है, यहाँ पे S2 90 है। S2 इज इक्वल टू 90। वैसे हमें ये प्लस करने की जरूरत नहीं थी, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ऑन 120 किलोमीटर ट्रैक, हम सीधा इसको 120 भी लिख सकते थे। तो 30 + 90 दैट इज़ 120, 0 से 0 कट गई, 6 1 = 6, 6 2 = 12, यहाँ पे 2 आएगा। तो T2 इज इक्वल टू 1 आवर। How fast must train travel the next 90 kilometers so as the average speed 60 km per hour for the entire trip? तो सेकेंड केस में कितना चलेगी? That is 1 hour. So in the next video we will come with more numericals.
So this is the concept of speed and velocity. Thank you.